जम्मू यूनिवर्सिटी ने आज अपना 47वां यानी कि 47वां फाउंडेशन डे जो है वो मनाया है। इस मौके पर वीसी उमेश राय यहाँ पर मौजूद रहे। इसी के साथ बात की जाए, रजत सलगोत्रा यहाँ पर मौजूद रहे और प्रोफेसर संदीप कौर टंडन और सुमित गैरोला, ये सब यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर क्या क्या हुआ वो जानने के लिए बने रहिए इस रिपोर्ट पे। मैम फ्रंट आ जाते हैं। फ्रंट से चलो आप रुको, एक आप ही करवा लें सर। Give my best wishes and congratulate Directorate of Distance Education on its 47th Foundation Day, and all the professors, all the directors who were associated with it, and all the students who have got degree from this particular department. They all must be very happy today, and other like thousands of students who are currently associated or registered with this department, they are getting a lot of benefit from this department. They all should be happy, and I also congratulate them all. So today I'll be discussing, and I would like to thank Dr. Professor Madam for giving me this opportunity to come here and discuss about this important and this particular thing which I've been doing from past 7-8 years, and now it is getting a good visibility all across India as well as not only in J&K, outside country also. Jammu is known it as a regional research laboratory, much more than IIIM, because it is one of the oldest institutions. Cluster, train them, provide distillation units. Each unit for the processing of this particular crops to take out oil is like 8 to 10 lakh. We install at one centralized place. We train them. We at the same time then test their produce and connect them with the industry. We bring industry on board. All aroma industry people are on board with us. We have routine meetings with them, and whatever produce is there, they'll directly sell to the industry. So like that, whole industry is starting up here in different parts of the country, and we do these activities. Like you can see, these are huge nurseries of these planting materials. So hundreds of thousands of planting material we have supplied to the more than 3,500 farmers across country. To all of you, and wish you many more coming years and glorious years coming to these institutions, and all the students who are here and many more to join in subsequent years will get benefited by the institutions that stands today. So congratulations to the incumbents today. As we add on more information with experience, the perception of the person, the personality also undergoes a change. So what do we feel is personality then? Personality then, as I say, at times becomes arbitrary. Arbitrary in the sense that what is the other side thinking about it? How do I influence what the other person is thinking about? Is the hallmark of all these personality traits that we talk about all the time. Certain brackets within the organization, and see that the different arms of the organization, how they are provided with people with right kind of attitude. तो 47th फाउंडेशन डे पर मैं डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर नीलू रोमित्रा, इंटायर टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑफिसर, स्टूडेंट सबको बधाई देता हूँ। और मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ, मेरा अल्मा मैटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर तो फाउंडेशन उसका बसंत पंचमी के दिन हुआ था, और प्रोसेसन निकलता है, बड़े बड़े पैमाने पर वो फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन डीडी के लिए बड़ा स्वर्णिम दिन है जी। ये आज आप बात कर रहे थे पनिशमेंट के बारे में कि पनिशमेंट्स को चेंज करके इनफैक्ट इम्प्रोवाइजेशन पे काम किया जाना चाहिए, तो आपको इस बात का जो ज्ञान है वो जहाँ पे देखा गया, आपने कहा कि ये महात्मा गांधी जी की लाइन है, तो कब ऐसा हुआ कि आपको इस लाइन से इंस्पिरेशन मिली? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में एज डायरेक्टर साउथ कैंपस काम करते हुए मुझे ये आभास हुआ कि विश्वविद्यालय का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वह पनिशमेंट मोड का एग्जामिनेशन सिस्टम है,
उसमें बच्चे की क्रिएटिविटी और एनालिटिकल एबिलिटी का कोई स्पेस नहीं है। और आज मुझे एज वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी में मौका मिला है, तो मैं चाहता हूं कि जो दर्द मैंने देखा है उसको अगर कुछ एडजस्ट कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। जो 47th फाउंडेशन डे था डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, उसमें मुझे आज मौका दिया गया। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर नीलू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जनता के साथ और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने का मौका मिला। जो मेरा डिस्कशन था मेनली रिलेटेड था पर्पल रेवोल्यूशन और CSIR अरोमा मिशन के बारे में। इसमें हमने कैसे किसानों तक लेवेंडर की खेती को और अन्य एरोमेटिक क्रॉप्स की खेती को पहुंचाया और कोशिश करी कि उनकी आय दुगनी हो, और वो हुई भी, कई गुना आय भी बढ़ी है, और कैसे ये एक पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से पूरे देश में, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर चुका है। उसी बारे में आज हमने डिस्कशन किया। सर, कितना मुश्किल था खारिफ क्रॉप, क्योंकि आपने जो एरियाज बताए वो सारे कुछ खारिफ क्रॉप पे थे, कुछ रबी क्रॉप पे डिपेंडेंट थे, लेकिन कितना मुश्किल रहा उन फार्मर्स के साथ काम करना, क्योंकि हमने सुना आपने फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की, जिससे मिडिल मैन की भी, और उनकी जो एक कनाल पे 3,000-4,000 सालाना कमाते थे वो 15 से 20,000 पे जाए। उस बारे में आप थोड़ा बताएं। ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और अक्सर ये पूछा नहीं जाता है। मैं आपको ये बता दूं, जब 2016-17 में हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी और किसानों के पास हम जाते थे तो ज़्यादातर किसान इसको पौधा तो ले लेते थे लेकिन लगाते नहीं थे। करीब 100 किसानों को अगर देते थे तो 10-15 किसान ही आगे ले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, किसानों को दिखता गया कि किसानों की आय बढ़ रही है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली आज की डेट में ऐसी स्थिति है कि जितने अगर 1000 किसान हमसे मांगते हैं तो हम मुश्किल से 500 किसान को देने की स्थिति में ये इस लेवल तक पहुंच चुका है। और उससे हुआ क्या है सर कि जो किसानों की आय 2 से 3 हज़ार थी, जैसे आपने बताया 15 से 20 हज़ार हो गई, और ये तो अभी शुरुआत है। इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट बनने का इसका पूरी अपार संभावना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वो इन्वायरमेंट, वो खेत हैं, वो स्थिति है जहाँ पर ये पौधे उग सकते हैं। ये पौधे पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली, महाराष्ट्र में नहीं उग सकते, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में उग सकते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में जो उगता गेहूं, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारे किसान को पैसा नहीं मिलेगा। हमारे किसान को अगर कमाना है तो ऐसी फसल उगाएं जिसकी मार्केट में डिमांड है, और इनकी मार्केट में डिमांड है, इसीलिए हम इनको किसानों तक ले जा रहे हैं। सर, ये साल में 2 बार उगते हैं? ये एक फसल ऐसी है कि ये आपकी पेरिनियल बहुवार्षिक फसल है। पहले साल आप लगाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल कम मिलेगा, तीसरे साल से 15 से 18 साल तक ये आपको लगातार आउटपुट देता रहेगा। ये एक तरीके का आपका बाग की तरह लग जाएगा, और तीसरे साल से आपको ये बड़े आराम से, मतलब लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लोग, मैंने बड़ी बार सुना कि लोग फसल लगाते हैं लेकिन साल में रिजल्ट करते हैं। तो जैसे मैं बताया, शुरुआत में जब 2016-17 में हम देते थे, लोगों में पेशेंस नहीं थी। बहुत से किसान लगाते थे, 6 महीने में निकाल देते थे, लेकिन उनमें से कुछ 10-15 किसान जैसे जैसे 100 को दिया, उसमें से 10-20 ने आगे बढ़ाया। जब उन्होंने फ़ायदा देखना शुरू किया तो आज हर किसान जानता है क्या ये चीज़ है, क्योंकि नई चीज़ को एक्सेप्ट करना और मानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब सामने एग्जाम्पल आ गया तो हर कोई उसको लगाता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है। जब हम सेब लगाते हैं कई सालों बाद फसल देता है, लेकिन लोग जानते हैं कि इससे मिलेगा। उसी तरीके से आज हर किसान इसके बारे में इन क्षेत्रों में, खास तौर पे किश्तवाड़, भदरवाह और हमारे ठंडे इलाकों में जानता है इसके बारे में। सर, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें, क्या देंगे? क्योंकि इसमें हमने देखा प्राइम मिनिस्टर का भी डायरेक्टली इंटरफेयर था, PMO ऑफिस से भी डायरेक्टली इंटरफेयर था, तो लोगों के लिए, भलाई के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप तो? मेरा तो बस यही मैसेज है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एफर्ट्स लगा रहे हैं आप तक इन चीज़ों को लेके जाने का। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं, इसमें यंग लड़के जो एज ए एंटरप्रेन्योर बन के स्टार्टअप्स लगा सकते हैं। इसमें हमारी आर्मी जो इंटीरियर इलाकों में लोगों के साथ मिलकर काम करती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जुड़ के इसको करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के आएगा, जिसका आने वाले समय में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नॉट सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे भारत के लिए और एक्सपोर्ट में तक में जाने के लिए बहुत बड़ा चांसेस है।